Okay, students, so let's start with our section C, that is answer the following questions in short and each question carries 3 marks. Starting with the first question is about your partnership fundamentals, a very good sum of your past adjustments. So if you can see the solution which is on the board. The question says Durva, Darshi, Plancher, partner sharing profit and loss ratio 5:3:2. At the end of the year, after preparation of final accounts, it is realized computation of interest on drawings is missed out. Interest on drawings were 2000, 1600, 1200 respectively. Write journal entry for rectification. तो आपको हमेशा सिखाया गया है कि इस सम को सॉल्व करने का बहुत बेसिक सा तरीका है. एक टेबल बनाइए विच इज लाइकली टू बी योर कैपिटल अकाउंट और एक छोटा सा पेन अप्रोप्रिएशन बनाइए. गलती क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए तो सिंपली चार्ज कर दो. योर एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो हमने कैपिटल को क्या किया, डेबिट. तो ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2000, 1600, 1200 डेबिट. सेम पेन अप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय नेचर नॉमिनल इनकम क्लोज विद क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में 4800 जैसे ही हो जाता है भूलना मत. पेन अप्रोप्रिएशन इज बाय नेचर नॉमिनल, यू हैव टू close it at the end of every year. So add the greater side, on the greater side find out the difference. The difference comes to be 4800, which is nothing but your divisible profit, which is to be distributed among the partners in their profit and loss sharing ratio, which comes to 5:3:2. What is the entry? It is P&L appropriation, 2 partners capital. So in P&L appropriation 2 partners capital 4800. जिससे आपका P&L appropriation close हो गया. 2 capital को किया क्रेडिट. 2400 credit, 1440 credit, 960 credit, and the final net effect comes as Durva 400 credit, Darshi 160 debit, Pranshi 240 debit, and the final rectified entry is Darshi's capital 160, Pranshi's capital 242, Durva's capital 400. This should be the solution. Going to the next one, that is question number 32, which is a very basic sum of sacrificing ratio. If I talk about sacrificing ratio, your formula is old ratio minus new ratio. 3 partners है, अपूर्व, अक्षय, आर्य. उनका old ratio आपको दे दिया है, उनका new ratio आपको दे दिया है. सिर्फ फॉर्मूला में डाल दो. old ratio is 1/5, 2/5, 2/5. new is 3/6, 2/6, 1/6. डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो एलसीएम ले लिया तो आपका आता है 30. तो 5 6 जा 6 5 जा, जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करो. So if you can see, the answer comes to be 6 minus 15, that is minus 9/30, 12 minus 10, that is 2/30, and 12 minus 5, that is 7/30. And अगर आपका sacrificing ratio में आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, which means the partner is sacrificing. So the sacrificing ratio comes to 2:7. If I talk about the next question, that is a theory question, that in which circumstances court can pass the order for dissolution of a firm. तो बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, अराउंड 7-8 पॉइंट्स है. आपको सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है. 4 याद रखना, 5 याद रखना काफी है. द पार्टनर शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ही शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द मिसकंडक्ट ऑफ एनी बिजनेस, द बिजनेस शुड नॉट कंटिन्यू लॉसेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इफ इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑफ द एक्टिविटीज. ये 4-5 पॉइंट याद रखोगे तो काम हो जाएगा. Going to the next one, that is question 34, that is a very basic question of dissolution. ठीक है, आपको सिर्फ एंट्रीज ही पास करनी है. मेक श्योर आपको फॉर्मेट पे एंट्री पास करनी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म आर 10,000. योर एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश आउट बैंक 10,000. Batters of 12,000 written off, 8,000 is received. Your entry is bank account debit to realization 8,000. And the last one, there is no value of goodwill in the books of the firm, but at the time of dissolution 40,000 realized for it. जो था नहीं वो बेचा, अच्छा लगा, अच्छा हो गया, बोलते gains have to be created with P&L क्या है, realization को सामने बेचा तो पैसा मिला. Entry is cash or bank to realization 40,000. Hopefully this clear to everybody. Going on the next one, that is question 35, which is a very good question of debenture, लेकिन ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही है कहीं ना कहीं. रिडम्पशन का क्वेश्चन पूछा है आपको. On 1/4/17, Navya Limited issued 6,000 11% debentures of 100 each at a discount of 5%. यानी कि आपका फेस वैल्यू बन गया 100, इशू प्राइस बन गया 95 because 5% डिस्काउंट पे है. All the debentures are to be redeemed after 6 years as on 31/3/23 at a premium of 10%. Pass necessary journal entries in books of the company. अच्छा, without narration. The entry goes like this. Your first entry is bank to 11% debenture application. That is 6,000 into 95 with the issue price, which comes to 5,70,000. 5,70,000. Next, on the same date, 11% debenture application, 5,70,000. Discount on issue account debit 6,000 to 5 because debentures discount issue which comes to 30,000.
to 11% debentures, that is 6,200, that is 6 lakh. But भूलना मत, your debentures are to be redeemed at premium. इसके लिए आपको additional entry pass करनी पड़ती है, that is LID to PPRD with the amount of premium which you are going to repay at the end of redemption period. That is 10. That is 6,000 to 10, which comes to 60,000. That is loss on issue of debentures to PPRD. Now time for redemption. Your entry goes like this: 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख, बिकॉज उनको पे ऑफ कर रहे हैं. किसको पे ऑफ कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को तो बुक्स में लाना पड़ेगा. तो टू डिबेंचर होल्डर, बिकॉज पे नहीं किया, लायबिलिटी है. कितने अमाउंट से? 6,60,000 से, बिकॉज पे करना था 6,000 × 110, 660 पे करना है अगेन 6 लाख. तो अच्छा लगा है? बुरा बुरे को क्या बोलते हैं? लॉस टू बी डेबिटेड. बट डू वी हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ? यस, बेटर यूज इट. PPRD 60,000. Your entry is 11% debenture, PPRD to debenture holder, and in the end pay off debenture holder by passing the debenture holder to bank 6,60,000. And the last question, that is distinguish between shares and debentures. If you understand, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं. आप कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हो. जैसे कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल है, तो शेयर्स बन गया ओनर्स फंड, डिबेंचर्स बन गया बोरोड फंड. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बिकॉज डिविडेंड प्रॉफिट होता है तभी देते हैं. डिबेंचर्स को कैसा है कि लीगल ऑब्लिगेशन है, पे करना ही पड़ता है इंटरेस्ट. If I talk about issue of discount, तो no, as per Companies Act, shares cannot be issued at discount, but debentures can be. And if I talk about the redemption part, तो the debentures are redeemed after a stipulated period of time, but equity shareholders or the shares are redeemed in case of equity at the time of liquidation, and in case of preference, usually after a stipulated period of time. So that's your section C. Okay, so we are starting now with section D, where each question carries 4 marks और आपको कोई भी 3 करने थे. Hopefully आपने बहुत स्मार्ट सिलेक्शन किया होगा. एनीवे स्मार्ट सिलेक्शन की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सारे इजी थे. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 37 फर्स्ट. दैट इज आप सबका फेवरेट गुडविल का क्वेश्चन. From the following information of Bharat and Yash firm, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weighted average profit. अगर आप देखोगे तो आपको जो 5 साल दिए हैं, उन सारे 5 साल के प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिखेगा आपको, एंड दैट्स द रीजन यू हैव बीन आस्क्ड टू फॉलो वेटेड एवरेज. तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है: ईयर प्रॉफिट वेट्स वेटेड प्रॉफिट. हाउ टू गेट वेटेड प्रॉफिट? इट इज प्रॉफिट इनटू वेट्स. तो आपके प्रॉफिट 20,000, 30,000, 37,500, 45,000, 60,000. आपके वेट्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट ईयर. जो आपका लेटेस्ट ईयर होता है उसका सबसे ज़्यादा वेट होता है, और जो सबसे दूर वाला साल होता है उसका सबसे कम वेट होता है. सो आपका जो सबसे दूर वाला साल है वो 18-19 है, और सबसे नज़दीक वाला साल वो 22-23 है. तो आपका जो सीक्वेंस होगा वेट्स का, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. यू सिंपली मल्टीप्लाई इट्स 20,000 into 120, 30,000 into 60,000, 37,500 into 3 is 1,12,500, 45,000 into 4 1,80,000, and 60,000 into 5 3 lakh. The sum of weights comes to 15, and a weighted profit comes to 6,72,500. So how do you calculate weighted average profit? It is sum of weighted profit divided by sum of weights, that is 6,72,500 upon 15. आपका आंसर कुछ 44833.33 आएगा. डरना मत कि पॉइंट में आ रहे तो गलत है, जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट वाला आंसर गलत ही हो. अगर आपको राउंड ऑफ करना राउंड ऑफ कर सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर कि आप राउंड ऑफ करो, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ नहीं करोगे तो आंसर में थोड़ा चेंज आएगा, आपको आगे पता चलेगा. तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या है? स्टेप 1, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. उसके बाद है गुडविल, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 44833 into 3. अगर आप यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करोगे तो आपका आंसर आएगा 134450 rather than 499. बस उतना सा फर्क है. एनीवेज उसके मार्क्स दिए कटेंगे, तो आप निश्चिंत हो जाए उस चीज के लिए. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38, which is again the sum of goodwill. काफी गुडविल के समय the capital of Anjali and Akanksha's firm is 8 lakh, and the expected rate of return is 12%. Last 3 years profit are 1 lakh, 1,40,000, 90,000 respectively. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. तो फर्स्ट हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है रिगार्डिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट. दिस सिग्मा पी, दैट इज समेशन ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. इट इज 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 90 डिवाइड बाय 3, व्हिच कम्स टू 1,10,000. फिर आते हैं हम सीधा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में, बिकॉज हमें हमारा इंग्रेडिएंट मिल चुका है, दैट इज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट. स्टेप 1, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको बहुत दफा ये बताया गया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल रियल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, which tends to be your capital of the firm.
इस क्वेश्चन में आपको सीधा कैपिटल दे दिया है तो आपका काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा 8 लाख, दैट इज firm's capital. Second is NRR, that is normal rate of return or expected rate of return. उसका फॉर्मूला बनता है capital employed into NRR percentage, that is 8 lakh into 12%, that is 96,000. Third is simple average profit जो already हम निकाल चुके हैं, that is 1,10,000. Then comes point number 4, super profit, that is AMP minus NRR, that is average profit minus NRR, that is 1,10,000 minus 96,000, that's 14,000. तो याद रखना super profit है 14,000. गुडविल नहीं है, गुडविल मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 14,000 to 2 which comes to 28,000. Moving to the next one, that is a very basic question of comparative statement of P&L. If you can see, जहाँ पे अंडरस्टैंड आपको इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म में दी जाएगी और आपको उसको पहले फॉर्मेट में सेट करना है. नाउ दिस इज वन वेरी बेसिक मिस्टेक व्हिच एवरीबॉडी मेक्स कि फॉर्मेट में सेट किए बिना आप चालू कर देते हो. डोंट डू दैट, स्पेशली P&L में जहाँ पे आपको सारे वैल्यूज स्कैटर्ड मिलेंगे. याद रखना आपने ऑलरेडी कंपनी फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना पड़ेगा. जो मैंने आपके सामने बना दिया है. सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम गिव्स यू टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस गिव्स यू टोटल एक्सपेंस जो आपको देगा PBT, माइनस टैक्स गिव्स यू PAT. कुछ एक्सपेंसेस मैंने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मजूरी मत करो. सारे वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे दिए हैं तो मैंने उस तरीके से सारे वैल्यूज को पुट इन कर दिए हैं. फर्स्ट कॉलम इज 31,322, नेक्स्ट कॉलम इज 31,323 एंड देयर कम्स द मेन पार्ट ऑफ कंपैरेटिव, दैट इज द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज रुपीस एंड इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज. How to calculate increase decrease in rupees? It is current year minus previous year. And how to calculate increase decrease in percentage? That is increase or decrease by previous year into 100. Answer accordingly comes sales revenue. अगर मैं increase decrease amount की बात करूँ 5,85,000, the percentage comes to 30%. Other income, that is current year minus previous year, gives you 95,000. The answer is 50% in percentage. Total revenue difference दोनों का आता है 6,80,000. आपका percentage है 31.78%. Then let's come to expenses. Cost of goods consumed makes 11,40,000 minus 9,50,000. The difference comes to 1,90,000. The percentage is 20%. यहाँ पे याद रखना आपका जो प्रीवियस ईयर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट ईयर, इसलिए आपका वैल्यू नेगेटिव में आया, नेगेटिव 60,000. तो आपका परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगा, दैट इज 40%. There is no change as far as depreciation is concerned. तो increase decrease rupees में भी कोई change नहीं आएगा और increase decrease percentage में भी कोई change नहीं आएगा. Other expenses में it is 4,25,000 minus 3,40,000, difference is 85 and the percentage is 25%. Total expenses का difference आ रहा है 2,15,000 and the percentage comes to 14.33%. रूल याद रखना, इन तीनों का परसेंटेज हमेशा सेम आता है जो 72.66, 72.66 एंड 72.66% है. लेकिन भूलना मत, हमें ये वैल्यूज भी चाहिए, दैट इज 4,65,000 इन दोनों का डिफरेंस, 1,39,500 इन दोनों का डिफरेंस एंड लास्ट में 3,25,500 इन दोनों का डिफरेंस. दैट्स योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत बेसिक सा सम पूछा था, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, सिर्फ वैल्यूज पुट करने की जरूरत थी और सही तरीके से कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत थी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन 40 व्हिच इज अ वेरी बेसिक सम ऑफ रेशियो एनालिसिस, जहां पे आपको इमेजिन पूछ के क्या पूछा, करंट एंड लिक्विड, ठीक है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? इट इज करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिक्विड रेशियो? इट इज करंट असेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी. बट अबाउट करंट असेट्स तो लिस्ट दे दिया है, आपको प्रॉपर बाइफर्केशन करना पड़ेगा. करंट असेट्स का बाइफर्केशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000, डेटर्स 1,20,000, बिल रिसीवेबल 60,000, स्टॉक 1,40,000, करंट इन्वेस्टमेंट 1,00,000. द टोटल कम्स टू 6,00,000. करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया 2,00,000, बिल्स पेबल 1,00,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 80,000, टैक्सेशन प्रोविजन 80,000. The total liability comes to 4,60,000. Now just put in the formula. Current ratio is current asset upon current liability, that is 6,00,000 upon 4,60,000. The ratio comes to 1.30:1. Remember the idle ratio over here is 2:1. लिक्विड रेशियो अगर मैं बात करूं तो इट्स करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ स्टॉक माइनस किया है. अपॉन करंट लायबिलिटीज इट इज 6,00,000 minus 1,40,000 upon 4,60,000, that is 1:1, which is the ideal ratio for the liquid ratio. तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 41 से. बचपन में कहावत सुनी थी, खुदा पहाड़ निकली चूहिया. आज एग्जैक्टली
वो कहावत का मतलब मुझे आज पता चला। 11 मार्च 2024। I was expecting much as far as cash flow statement is concerned, because that is one topic which I think I give my blood and sweat when it comes to this topic. I teach this topic for almost 18 to 19 sessions, which is much above the average all over India, boss. और इतना करने के बाद माई फर्स्ट आई से जो मुझे पहला शौक आया, दैट वाज व्हेन आई वाज गिविंग माय रिविजन्स, फाइनल रिविजन्स, बिकॉज आई नॉर्मली डोंट टीच सीइंग द पेपर्स टाइप। तो रिवीजन करवा रहा था, तब पता चला कि वो सेक्शन डी का हिस्सा बन गया, और उसमें भी देयर आर सम हाउ मेनी क्वेश्चंस, सम 37, 38, 39, 5 questions, 6 questions, yeah 5 questions, and out of which you are supposed to do any 3. तो बहुत कन्वीनियंटली बच्चे ऑप्शन में छोड़ना शुरू कर दिया कैश फ्लो को, तो इट हर्टेड मी अलॉट, यहाँ दुखा। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू, आई डिड माई जॉब, 18 सेशंस एंड इवन द रिविजन, सो नो रिग्रेट्स। बट जिस बच्चे ने कैश फ्लो चैप्टर छोड़ दिया होगा ना बॉस, ये मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पक्का रिग्रेट होगा कि यार बस इतना ही करना था और इसके 4 मार्क मिलने वाले थे। यस, बिलीव मी, इतना ही करना था और उसके 4 मार्क। अगर ये पूरे पेपर में, मैंने बहुत बार आई थिंक आगे के सम्स में मैं जब, इनफैक्ट दिस इज सम विच आई एम डूइंग लास्ट, ठीक है, पहले मैंने एडमिशन रिटायरमेंट वीडियो में बनाए हैं, ठीक है, आपको भले ही क्रोलॉजी 41, 42, 43, 44 दिखेगा, मगर मैंने पहले 41, 42, 43, 44 खत्म किया, फिर मैं ये सब पर आया। तो तीनों सब में आई हैव सैल्यूटेड बॉस टू द पर्सन हु हैज ड्राफ्टेड दिस पेपर, बिकॉज जिसने भी ये काम किया बहुत सुंदर काम किया है। मगर ये क्वेश्चन में आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड, यू कुड हैव डन बेटर, ठीक है, थोड़ा अच्छा पूछ सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली पूछा नहीं है। क्या पूछा है बता देता हूँ। ऑपरेशन पूछा है, जैसे ही ऑपरेशन आता है, दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है, ऊपर आता है हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग, फिर कैश फ्लो ऑपरेशन, यहाँ से ऑपरेशन शुरू होता है। बैलेंस दैट इज वो जो PAT होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, उसमें से सारे रिजर्व्स, सारे अप्रोप्रिएशन माइनस करते, फिर जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में बैलेंस बचता है करंट ईयर प्रॉफिट का, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसमें ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉसेस, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन। क्यों ऐड बैक करते हैं, प्लीज ये टाइम नहीं है पूछने का। अगर जानना है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक चैनल फॉलो करिए, या तो फिर बेस्ट ऑप्शन है हमें ज्वाइन कर लीजिए बॉस। लेस ऑपरेटिंग non-cash and non-operating incomes and gains, what you get is cash flow operation before changes in working capital and tax paid। उसमें से changes in working capital आप adjust कर लीजिए, प्लस माइनस जो भी करना है। what you get is cash flow operation before tax paid, उसमें से tax paid माइनस करिए, what you get is cash flow operation। ये पूरा फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। From the following information of Samarth company, prepare statement of cash flow from operating activity। The first item that they have given is profit before changes in working capital। यानी if you can understand, मेरा पहला आइटम 4,95,000 ये है, यानी ऊपर का सारा हो चुका है बॉस। So only thing that you are supposed to do is adjust your working capital and get your full 4 marks। अब adjusting working capital में there are 2 methods। एक वो जो मैं कैप्सूल देता था आपको, और दूसरा टेक्निकल वाला। वंस अगेन टेक्निकल वाले के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो मेरा चैनल देख लीजिए या तो फिर बेस्ट ऑप्शन ज्वाइन मी, ठीक है। तो उसमें वो टेक्निकल वाला कि क्यों जब डेटर बढ़ता है तो उसका इफेक्ट जो हम देते हैं वो होता है, क्यों कम होता है तो जो इफेक्ट होता है वो देते हैं। बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड्स, वो बढ़ता है कम होता है तो प्लस होता है माइनस होता है, क्यों करते हैं, वो टेक्निकल वाला भी एक पूरा अप्रोच है जो मैंने सिखाया है। मगर एग्जाम में मैंने बताया था डोंट गो टेक्निकल, टेक्निकल इज ओनली व्हेन यू वांट टू टीच समवन, सो मेक श्योर यू टीच देम राइट। उस समय कैप्सूल्स मत दो। मगर एग्जाम में किसको पता आपने कैसे सॉल्यूशन दिया, व्हाट मैटर्स इज द आंसर। सो व्हिचएवर इज फास्टेस्ट मेथड फॉलो दैट। तो व्हाट इज द फास्टेस्ट मेथड, इंक्रीज इन डेटर। सिंपल सवाल पूछने का, डेटर इज योर असेट, असेट बढ़ता कब है, when you purchase cash goes out, हमें कैश तक पहुंचना है, so increase in
डेटर कितना है 75,000 या सेकेंड कॉलम में ही रखता हूं कैश गोज आउट. डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना है 40,000. वापिस सवाल पूछे, बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट. असेट कम कब होता है when you sell money comes in. So there is inflow. Outflow है तो ब्रैकेट में रखा है, inflow है तो ओपन में रखा है. Once again, don't tell me इतना मुझे जज मत करना सर. बिल्स रिसीवेबल कम, डेटर बढ़ता कब है when you purchase money goes out. सर डेटर थोड़ी ना परचेज हो सकता है. बेटा मेरे को पता है, डोंट जज मी ऑन दैट. दिस इज द शॉर्टकट विच आई एम गिविंग यू. लॉन्ग कट के लिए पूरा फीस भरना पड़ता है, तो फीस भर देना, लॉन्ग कट बता दूंगा तेरे को. नेक्स्ट, डिक्रीज इन स्टॉक. Once again, stock is your asset. Asset कम कब होता है when you sell money comes in. तो ये 30,000 भी आपका अंदर आया. Increase in prepaid expense. Prepaid expense is your asset. Asset बढ़ता कब है when you purchase money goes out. 25,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इंक्रीज, तो यहां लिखो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी. कोई भी लायबिलिटी बढ़ती कब है व्हेन दे पे अस. कम कब होती है व्हेन वी पे देम. यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ा है यानी दे पेड अस. व्हेन दे पेड अस मनी कम्स इन. तो 15,000 यहां पर इनफ्लो दिखा दो. डिक्रीज इन क्रेडिटर, यहां पर लिखो पहले डिक्रीज इन क्रेडिटर. लायबिलिटी है क्रेडिटर. लायबिलिटी कम कब होती है व्हेन वी पे देम ऑफ. मनी गोज आउट एंड द सम इज ओवर. सिर्फ टोटल कर लो, वैसे कैलकुलेटर के बिना भी हो जाएगा, मगर एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, चांस नहीं लेना है. 75,000 नेगेटिव, 25,000 नेगेटिव, 20,000 नेगेटिव, 120 हो गया टोटल. 40 और 30, 70 उसमें से माइनस कर दो, 50 रहा, 15 उसमें से माइनस कर दो, तो बचा 35 नेगेटिव. ये इसको बाहर ले लेते हैं आउटर मोस्ट कॉलम में. 495 था ना क्वेश्चन में. हाँ, और ये बचा आपका 35,000 नेगेटिव. माइनस करो, सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज 4,60,000. व्हाट इज दिस? कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड. इसमें से टैक्स पेड अगर दिया होता तो माइनस कर दे और फिर जो मिलता दैट वुड हैव बीन योर कैश फ्रॉम ऑपरेशन. बस इतना करना था और आपके 4 मार्क कोई आपसे छीन नहीं सकता था. दैट्स इट फॉर द डे. बाय बाय. ओके, अब जो आपको वीडियो दिख रहा है उसमें थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ ऑफ एंटायर क्वेश्चन नंबर 42. अब ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या देखना था. पहले तो सारे एडजस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला एडजस्टमेंट था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट वाज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट वाज जस्ट अ इंफॉर्मेशन. दूसरा, प्रिया ब्रॉट 50,000 एज कैश. आपका एंट्री होता है कैश टू प्रिया, नॉर्मल एंट्री, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी. इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, वंस अगेन इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नॉमिनल क्लोज टू पीएनएल. व्हाट्स योर पीएनएल रिवैल्यूएशन? सो योर फाइनल इज रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. कोई नई बात उसमें भी नहीं थी. तीसरा, पर्सनल एक्सपेंस 8,000 ऑफ रिया वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस वाज अ गुड एडजस्टमेंट, बट if your basics are clear, even this won't hurt you. Your basic entry, wrong entry is it was debited to PNL, so PNL to cash. Reverse karo cash to PNL. Correct entry is drawings to cash. Cash cancel. Your final entry is drawings to PNL. What's your PNL? So answer is revaluation. So your entry is finally capital. Drawings will be transferred to capital, so it is capital to revaluation. That's your final entry. Next is reconstruction expense of 12,000 is paid to Shriya. Once again, there will be many who will be shivers क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था, but it was normal. It was expense to cash, basic पकड़ लो, expense close to PNL. What's your PNL revaluation? Cash तुमने पे किया, नहीं किसने पे किया? श्रिया ने. तो instead of cash आ गया श्रिया, entry हो गया revaluation to श्रिया. Hope that is clear. So adjustments में कुछ नहीं था. गुडविल की बात करें तो गुडविल में आपको फॉर्म्स गुडविल दिया था, तो हमने सीधा प्रोपोर्शन निकाल दिया. जैसे यहां पर आपको दिख रहा है
ठीक है, आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल वीडियो भी है, आप उसमें देख लेना, मगर दिस शुड बी योर प्रोपोर्शंस, क्योंकि प्रोपोर्शन था तो हमने सीधा फॉर्म्स में लगा दिया तो हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मिल गया, मगर यहां पर एक कैच था। क्या था वो कैच? कैच ये था कि आगे कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें जो प्रिया है उसको बेस बनाना था, और क्योंकि उसको बेस बनाना था तो उसका कैपिटल कम नहीं कर सकते, और अगर उसको डेबिट कर दिया तो शी इज द गेनिंग पार्टनर तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो हमें उसको डेटर भी बनाना है और उसको कम भी नहीं करना है, तो दोनों कैसे करेंगे? सिंपल है, विल फाइंड अ मिड वे, विल डेबिट प्रिया बट नॉट हर कैपिटल बट हर करंट. So your entry is gaining partner account debit, R account debit, R's capital account debit, not Priya's capital but Priya's current account debit to Shriya account. अगर ये सही कर लिया तो ये सबको सही करने से आपको कोई रोक नहीं सकता. That's it. तो ये एक अच्छा पॉइंट था इसमें. फिर सीधा कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाता है. कैपिटल एडजस्टमेंट में जो हमारा नॉर्मल वर्किंग होता है, व्हाट योर कैपिटल इज, तो यहां से मिल जाएगा एट द ग्रेटर साइड ऑन द लाइटर साइड फाइंड आउट द डिफरेंस, नॉट दिस डिफरेंस, विदाउट दिस जो डिफरेंस आता है डिटेल में चाहिए तो वीडियो है देख लेना. तो 220.46 मिला. व्हाट योर कैपिटल शुड बी, तो प्रिया को बेस बनाना है. प्रिया का अगर 1/9 शेयर है तो 50,000 लेकर आई, तो बाकी दो पार्टनर्स का 8/9 है. अगर 8/9 कैसा है वो जानना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के टीचर्स, वही आपको बता सकेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 लाख आ गया. दिस इज व्हाट Shriya and Riya's capital should be, and how it should be in the new ratio, which is 3:5. इसलिए 3/8 5/8 करना, 3/9 5/9 मत करना, क्योंकि ये 4 लाख उन दोनों का है, उसमें प्रिया नहीं आती है, तो प्रिया का शेयर ऐड मत कर देना डिनोमिनेटर में. तो सीधा आपको मिलेगा 1.5 लाख और 2.5 लाख. कंपेयर करिए, कम पड़ा लेकर आइए, ज्यादा हुआ उठा लीजिए. सिर्फ यहाँ पर कैश की जगह करंट यूज करना है. अगर उठाना है कैपिटल को कैश के बदले करंट कर दीजिए, ले आना है तो कैश टू कैपिटल के बदले करंट टू कैपिटल कर दीजिए. बस इतना करना था. इतना अगर आपने सब किया है तो आपका रिवैल्यूएशन लॉस आएगा 9,000 का, जो आप ट्रांसफर करोगे आपका कैपिटल 1.5 लाख 2.5 लाख 50,000 आएगा. और फाइनली जो आपको ऐसे सपने आते थे ना जिसके बैलेंस शीट टेली करने के, वो हो जाएगा विद 6,54,000 ऑन ईच साइड. Hope things are clear. Bye-bye. Okay, let's go on a, I'll say, fast brief about the entire question number 43. The sum was going like this. It was Shiniva and Nakul were partners 1:2. They admitted Ricky as a partner. पहला एडजस्टमेंट बहुत सिंपल जा रहा है. बैड डेट सीरीज is kept at 5,000 on debtor, अंदर 8,000 दिख रहा है. कम करना है. अकाउंट्स भी कम कैसे करते हैं कि अपोजिट इफेक्ट जब चाहिए था PNL to BDR नहीं चाहिए, उल्टा कर दो BDR to PNL. What's your PNL revaluation? Your entry is BDR to revaluation. Nothing in that adjustment. Second is goodwill is valued at 36 और नीचे लिखा है रिकी पैसा लेकर आया. So your entry is cash to sacrificing partner. Nothing new in that. हाँ, मगर जो sacrificing ratio और proportion निकालने वो मेरा इस सम का हीरो था. Hope that is clear. कैसे निकाला? तो आपको बोला गया शिनिवा सेक्रीफाइस 1/3 ऑफर शेयर, 1/3 ऑफर शेयर, उसके शेयर का 1/3, तो मल्टीप्लाई करो, फिर जो मिलता है दैट्स योर सेक्रीफाइसिंग प्रपोर्शन. नकुल सेक्रीफाइसेस 1/3 शेयर, तो वो 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वही सेक्रीफाइसिंग प्रपोर्शन है. तो कुछ मल्टीप्लाई करना मत, मल्टीप्लाई करोगे तो सम वही खत्म हो गया. Hope that is it. So that itself is your sacrificing proportion. यूज किया, आपको sacrificing amount मिल गया जो रिकी लेकर आया, आपने एंट्री पास कर दी कैश टू sacrificing partner. Hope things are clear. Value of land and building is appreciated by 10%. Simple land and building to revaluation, कुछ नहीं था उसमें. Book value of machine is 25% more than its market value. ये जो वर्किंग था ना वो इसका थोड़ा पेचीदा बहुत स्टूडेंट्स को लगता है, मगर इतना नहीं था. जो आपको दिया है वो बुक वैल्यू, जैसे वो 25% ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया, अज्यूम इट टू बी 100, तो बुक वैल्यू 25% ज्यादा है 125. अगर एक्चुअल बुक वैल्यू आपका 50,000 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढिए मार्केट वैल्यू कितना. तो 50 है, 40 करना है, कम करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 10,000, बहुत सिंपल था. फिर स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय 10%. दिस रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, कुछ नहीं करना था उसमें. ऑल योर एडजस्टमेंट्स आर डन. वंस यू आर डन विद दैट, गो फॉर योर फाइनलाइजेशन. रिवैल्यूएशन में जाओगे, एट द ग्रेटर साइड ऑन द लाइटर साइड फाइंड आउट द डिफरेंस. 6,000 आपका आंसर आना चाहिए. 6,000 नहीं आया तो आप गलत जा रहे हो, वापस करना शुरू करो. ये टाइम नहीं मिलेगा.
जैसे ही 6000 आया ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर किया, अब कैपिटल पर आ गए, बहुत बच्चे यहीं से कैपिटल एडजस्टमेंट सोचना शुरू करते हैं। नहीं, एक और स्टेप आप आगे जा सकते हो। व्हाट इज दैट स्टेप? एक बार और पढ़िए, कितने पार्टनर के कैपिटल एडजस्ट करने हैं? सिर्फ रिकी का। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है श्रीवा और नकुल, उसका कैपिटल एट द ग्रेटर साइड ऑन द राइटर साइड फाइंड आउट द डिफरेंस करके बैलेंस शीट में डाल दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं डाला तो ये जो वर्किंग दिख रहा है ना आपको, उसमें फंस जाओगे। तो पहले ये कर दिया, अब कैपिटल एडजस्टमेंट पर चले जाओ। कैपिटल एडजस्टमेंट को बुलाया, वो 50% नेट एसेट का लेकर आएगा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए नेट एसेट क्या है। तो बहुत बेसिक चीज है। 11th में एक इक्वेशन देखा था, C + L = A, उसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, C = A - L। बस ये जो है C = A - L, उसमें जो C है उसे हम नेट एसेट कह सकते हैं, नेट वर्थ कह सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं, उसको फर्म्स कैपिटल कह सकते हैं और कैपिटल भी कहते हैं। दिस इज योर नेट एसेट। तो ये जो नेट एसेट है यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, फिर जो बचा दैट इज फर्म्स कैपिटल, नेट एसेट, नेट वर्थ, जो भी टोटल है उसका 50% अपना रिक्की लाएगा। अगर मेरे पास फर्म्स कैपिटल होता तो उसका 50% कर देता, मगर नहीं है। तो जो मेरे पास मौजूद था श्रीवा और नकुल का कैपिटल, उसको बेस बनाया कि अगर टोटल नेट एसेट 100% है, उसका 50% रिक्की लाता है, तो बाकी का 50% श्रीवा और नकुल लाएंगे। मेरे पास 100 नहीं है, मेरे पास ये 50 नहीं है, मगर ये 50 का टोटल है। नकुल और श्रीवा का टोटल मिलाकर कैपिटल जो मुझे वहां से मिला था, इट इज 2,69,000। फिर सिंपल लॉजिकल मैथ्स किया बॉस कि 50% अगर 269 है तो बाकी का 50 कितना होगा? सोचो सोचो सोचो, 269। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली रिकी विल बी ब्रिंगिंग। कैश टू कैपिटल 269, इन कैश टू कैपिटल, इन कैपिटल बाय कैश, एट द ग्रेटर साइड ऑन द राइट साइड फाइंड आउट द डिफरेंस। योर रिकीज कैपिटल इज 269। जब बहुत समय मिल जाए जिंदगी में कुछ करने के लिए ना हो, तो इन तीनों का टोटल करना, उसका 50% रिकी का कैपिटल होना चाहिए। ये सब कर लोगे तो बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा और वो होगा 5,63,000। अगर ये हो गया तो 8 मार्क्स से आपको कोई रोक नहीं सकता। एंड आई एम डन। ओके, चलो फटाफट करते हैं। मानसी, निशिल, नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:3:3। मानसी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डे वाज एज अंडर। दो चीजें जो हमेशा आपको चेक करनी है, लायबिलिटी साइड पर करंट अकाउंट है, नहीं है। गुडविल है, क्या करेंगे उसको? राइट ऑफ, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। एडजस्टमेंट्स की अगर बात करें, फॉलोइंग कंडीशंस वर डिसाइडेड ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। पहला, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4,000, यू आर इनटू रिटायरमेंट। सो इफ यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स, इफ यू आर पार्ट ऑफ SCBL, तो आपको पता होगा रिटायरमेंट यानी वी आर ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो आई फाइंड आउट माय गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रोपोर्शन मिला मुझे, फॉर्म्स गुडविल दिया है, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। योर गेनिंग पार्टनर वाज निशिल एंड योर सैक्रिफाइसिंग वाज मानसी एंड नमन। योर एंट्री बिकेम निशिल अकाउंट डेबिट टू मानसी टू नमन। पोस्ट कर दिया, गुडविल वाज डन। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। फिक्स्ड एसेट के नाम पर दो फिक्स्ड एसेट थे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। योर एंट्री इज लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कुछ नहीं था उस एंट्री में। स्टॉक वॉज फाइंड ओवर वैल्यू, एंट्री में कुछ नहीं था, थोड़ा वर्किंग में ध्यान देना। इफ इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 100, then right now its book value is 110. If right now its book value is 6,600, which is given in the balance sheet, old balance sheet, then what should be its actual value? Cross multiply, get the answer. What you get is 6,000. 6,600 है आपके बुक में, होना चाहिए 6,600 से कम करना है। Entry is revaluation to stock. Hope that is clear. Then you give new profit sharing ratio which is 4:1. दो जगह काम आएंगे, एक तो मुझे सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन निकालने के लिए और दूसरा न्यू कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। लास्ट कहता है अमाउंट ड्यू टू मानसी टू बी पेड इन कैश, कैश बैलेंस 1000 मेंटेन करना है। और ये सब पैसा कौन लाएगा? निशिल और नमन, इन सच अ वे कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट में हो जाए। दैट वाज माय हीरो एज फार एज द सम इज कंसर्न। मगर ये कब करते हैं? एंड में। एंड में कैसे आएंगे? एडजस्टमेंट्स हो गए, लेफ्ट ओवर आइटम्स हो गए, रिवैल्यूएशन में जाएंगे। यहां देख लो, एड द ग्रेटर साइड ऑन द राइट साइड फाइंड आउट द डिफरेंस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1400 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा ही टोल्ड यू, कुछ गड़बड़ हुई है, वापस जाओ, सम चेक करो। 1400 आया, ट्रांसफर किया कैपिटल में। कैपिटल में जैसे ही ट्रांसफर किया, फर्स्ट थिंग दैट यू डू, यू आर इन रिटायरमेंट, रिमेंबर, फर्स्ट थिंग यू डू इज जो बाहर जा रहा है उसको बाहर करो। सो एड द ग्रेटर साइड ऑन द राइट साइड फाइंड आउट द डिफरेंस। मानसी को बाहर करो, 10,560 आया, पे कर दो। आप बोलोगे अरे सर मगर 400 रुपये ही है, हाउ कैन आई पे 10,560? बॉस तेरा प्रॉब्लम नहीं है,
निशिल और नमन जो भी पैसा होगा निशिल और नमन लेकर आएंगे, फर्म को पे अभी नहीं करना है। सो राइट नाउ मेक द पेमेंट मानसिस कैपिटल टू कैश। जैसे ही मानसिस कैपिटल टू कैश किया है, हैव आई पास द एंट्री? नो, आई हैव नॉट पास द एंट्री, बट होपफुली यू नो द एंट्री। मानसिस कैपिटल में टू कैश, कैश में बाय मानसिस कैपिटल। जैसे ही किया, मानसी बाहर हो गई, अब बचे निशिल और नमन, उनका कैपिटल एडजस्ट करना है। वही हमारा वर्किंग नोट होगा, जिसका कैपिटल एडजस्ट करना है उसके नाम ऊपर लिखो, व्हाट योर कैपिटल इज, व्हाट योर कैपिटल शुड बी। इस कहां से मिलता है? कैपिटल अकाउंट से, जो उनका एक्जिस्टिंग कैपिटल है। एट द ग्रेटर साइड ऑन द राइट साइड, फाइंड आउट द डिफरेंस, नॉट दिस डिफरेंस, बट बिफोर आई गॉट दिस डिफरेंस, व्हाट आई गॉट इज 37203120। टोटल किया, व्हाट यू गॉट इज फर्म्स टोटल एडजस्टेड कैपिटल विदाउट एनी डिमांड्स। फिर डिमांड्स पर आते, दो डिमांड की उन्होंने। पहली डिमांड, मानसी को पे करना है। कौन लाएगा पैसा? निशिल और नमन। कितना लाएंगे? तो प्लस अमाउंट पेएबल टू मानसी 10,560, ऑलरेडी उनका 6840 है, प्लस मानसी का 10,560 लाएंगे, तो अब उनका टोटल कैपिटल हो जाएगा 17,400। डिमांड वही खत्म नहीं हुई, फर्म ने और एक डिमांड की, कैश 1000 होना चाहिए, मगर फर्म के पास तो सिर्फ 400 था, तो 1000 कैसे करेंगे? 600 कम है, कौन लाएगा? निशिल और नमन। तो प्लस अमाउंट फॉर मेंटेनिंग कैश बैलेंस 600 रुपए वो लाएंगे, तो टोटल उनका कैपिटल हो जाएगा 18,000। ये 18,000 कैसे मेंटेन करना है? तो आखिरी डिमांड फर्म की, दिस हैज टू बी मेंटेन इन 4:1, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही 18,000 को 4:1 में करोगे, निशिल का हो जाएगा 14,400, नमन का हो जाएगा 3,600। दिस इज व्हाट देयर कैपिटल शुड बी। दो कैपिटल आ गए, व्हाट इट इज, व्हाट इट शुड बी, कंपेयर इट। निशिल की बात करें 10,680 से कम है, क्या बोलेंगे? चल लेकर आ। लेकर आने का एंट्री क्या? कैश टू कैपिटल, इन कैश टू कैपिटल, इन कैपिटल बाय कैश। नमन की बात करें 3120 है, होना चाहिए 3,600, 480 से कम है, क्या बोलेंगे? लेकर आ। एंट्री का होगा कैश टू कैपिटल, इन कैश टू कैपिटल, इन कैपिटल बाय कैश। At the greater side, on the right side, find out the difference. What you'll be getting is 14,400 and 3,600. What is 14,400 and 3,600? Those magical figure. What your capital should be. जैसे ये करोगे, तीन डिमांड उनकी थी। Number 1, Mansi should be paid. She has been paid. Number 2, your cash should be 1,000. It is 1,000. And number 3, निशिल और नमन का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए 4:1, 4:1 में आ गया। और जब ये सब हो जाएगा तो आपका जो बैलेंस शीट टोटल है वो 28,000 आएगा। और अगर ये आ गया तो बिलीव मी, एज आई टोल्ड इन द अर्लियर सम्स आल्सो, आपको 8 मार्क लाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं रिकैप देता हूँ कि आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि कंपनी ने कुछ 80,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन सामने उनके पास एप्लीकेशन आते हैं 1,20,000। सो 1,20,000 इज आवर एप्लीकेशन कॉलम। वहां पर 32 फुल्ली एक्सेप्ट हुए, 24 फुल्ली रिजेक्ट हुए और 64 को बचे हुए शेयर्स मिले। सो टोटल शेयर 80 थे, तो 32 वालों को 32 दे दिए, इनको कुछ भी नहीं दिया, तो बचे कितने? 48,000 शेयर्स जो हमने कैटेगरी सी को दे दिया। उनको अमाउंट्स में कन्वर्ट किया तो पता चला कि कैटेगरी ए वालों ने 1,28,000 दिए थे, 24,000 कैटेगरी बी ने 96 दिए, कैटेगरी सी ने 2,56,000 दिए, मल्टीप्लाइंग विद बाय एप्लीकेशन। उनमें से कैटेगरी ए का 1 लाख का 28 पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, दैट इज 32,000 into 4। 96 वालों का कुछ भी नहीं हुआ, और 48,000 into 4 दैट इज 1,22,000 उनका ट्रांसफर हो गया। टॉकिंग अबाउट द एक्सेस पार्ट, इन दोनों कॉलम्स को हमने कंपेयर किया है कि 1,28,000 आया, 1,28,000 ट्रांसफर हो गया, कुछ नहीं बचा। 96 आया, कुछ नहीं बचा, 96 कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ, 96 बच गया। 2,56,000 आया, 192 ट्रांसफर, 64 बच गया। इन दोनों में से हमने इनका एडवांस कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये हम रिजेक्ट करके वापस लौट आएंगे। 64,000 जो कैटेगरी सी का है वो एडवांस समझाया हमने। ग्रॉस अलॉटमेंट मतलब हर एक कैटेगरी से अलॉटमेंट में कितना मंगवाएंगे? इनसे 96 मंगवाएंगे क्योंकि 32,000 into 3। इनसे कुछ नहीं मंगवाएंगे क्योंकि इनको तो रिजेक्ट कर दिया था। 48,000 शेयर्स के हिसाब से 1,40,000 इनसे मंगवाया जाएगा। बट एज यू कैन सी द कैच, नेट अलॉटमेंट कैटेगरी ए को पूरा 96 भरना पड़ेगा, कैटेगरी बी को अभी भी कुछ नहीं करना है। कैटेगरी सी जो है उनको 144 देना था, 64 का उनका एडवांस एडजस्ट हुआ, तो 80,000 ही उनका नेट पेमेंट। Talking about the entries part, your first entry is normal entry, bank to equity share application, 1,20,000 into 4, that is 4,80,000. Second entry is your transfer adjustment entry, that is equity share application 4,80,000, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, to equity share capital 80,000 into 4, that is number of shares.
3,20,000 बैंक से जो रिजेक्ट हो गया वो हमने लिख दिया, और कॉल्स इन एडवांस लिखा है 64,000। आप यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट लिख के आए हो, यू आर राइट। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर अगर आपने कॉल्स इन एडवांस वाला अप्रोच किया है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा अमाउंट आपको मंगवाना रहेगा 2,40,000 से 80,000 इंटू 3। अगर आप यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट वर्ड यूज करके आए हो तो फिर ये वाली एंट्री आपकी 1,76,000 से बनी होगी। टाइम टू गो फॉर द फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,76,000, कॉल्स इन एडवांस आप एडजस्ट करोगे, इसमें डेबिट हो जाएगा 64,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट विद 2,40,000। अगर आपने शेयर अलॉटमेंट वर्ड यहाँ पर यूज किया था तो इस एंट्री में कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज नहीं होगा, डायरेक्टली बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,76,000 आ जाएगा। Talking about the last part, that is equity share first and final call to equity share capital, that is 2,40,000, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,40,000, कोई कॉल सी एरर नहीं है। इस हिसाब से आपका पूरा एंट्री आपका कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपने फॉर्मेट में किया होगा और वर्किंग्स नेसेसरी जगह पर शो कर दिए होंगे। दैट इज हाउ दिस होल सम वाज टू बी सॉल्व्ड। होपफुली इट इज क्लियर। थैंक यू। Okay, so we are here with 46 sum solution of share capital. There are 3 short sums. तीनों का solutions मैंने already बोर्ड पे लिख दिया है. Let us go with the briefing part. Company has forfeited 500 equity shares of ₹10 each. So technically number of shares जो है आपके 500 shares है, बराबर है, और वो आपने ₹10 पर each issue price भी चेंज था, मतलब shares were issued at par. Then Harnish did not pay 3, so unpaid is 3, paid is 7. And these shares were forfeited and reissued at what we can say 8 per share. ठीक है, तो आपका एंट्री किस तरीके से बना हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कॉल्स इन एरिया 1,500 टू शेयर forfeiture with the paid amount that is 500 into 7 3,500. रीइशू अनपे किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 into 500 4,000, शेयर forfeiture यूज हुआ 2 into 500 that is 1,000, क्योंकि ₹1 का आपने क्या दिया है उनको डिस्काउंट दिया है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000। फाइनल आपके पास 3,500 forfeiture था, 1,000 इज यूज्ड, तो 2,500 आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, जिसका एंट्री शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व रहा। टॉकिंग अबाउट हियर नंबर ऑफ शेयर्स 350 है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 है, अनपेड 5 था और पेड जो था वो भी आपका ₹5 ही था। ओके, रीइश्यूड इज डन एट 7 पर शेयर। तो यहाँ पर आपको अगर देखोगे कि 2 + 3 आपने नहीं पे किया था, तो बाकी का 5 आपने पे किया था। तो इन दैट केस ऑल्सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500, दैट इज 350 into 10, कॉल्स इन एरिया 350 into 5, दैट इज 1,750, and 2 शेयर forfeiture 350 into 5 1,750. रीइश्यू इज डन एट ₹7 पर शेयर, तो ₹3 का आपने क्या दिया था डिस्काउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 7 into 350, शेयर forfeiture 1,050 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,500। शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व कैसे बचा? तो 1,050 था आपका, आपका 1,750 था, 1,050 यूज हो गया, तो 700 आपने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। इन द लास्ट केस आपके पास टोटल 1200 शेयर्स थे, आपने फेस वैल्यू 10 रखा था, इशू प्राइस 15 रखा था, क्योंकि 10 + ₹5 का प्रीमियम आता है। अनपेड वाज 3, सो पेड वाज 12 ऐसा हम अज्यूम करेंगे, उसमें प्रीमियम ऑलरेडी पेड था। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने रीइश्यू किए वो 800 थे, और रीइश्यू वाज डन एट डिस्काउंट ऑफ ₹5। 10 का शेयर 5 के डिस्काउंट पे इशू हुआ, मतलब ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ₹5 में ही आपने इसको इशू किया था। तो फर्स्ट एंट्री वुड हैव बीन इक्विटी शेयर कैपिटल 1,200 into 10 12,000, टू कॉल्स इन एरिया 3,600, दैट इज 1,203, अनपेड अमाउंट जो पेड था ₹7 वो चला जाएगा शेयर forfeiture। प्रीमियम इसमें आएगा नहीं, बिकॉज प्रीमियम इज ऑलरेडी पेड। टॉकिंग अबाउट रीइश्यू, बट रीइश्यू के पहले ये मैंने रूल समझाया था आपको कि 1200 शेयर्स पे 8,400 forfeiture, तो 800 शेयर्स पे 5,600 द अमाउंट ऑफ शेयर forfeiture व्हिच कैन बी यूज्ड। और 5,600 ही यूज कर सकते हैं। देखिए कितना किया, बैंक अकाउंट 800 into 5, शेयर forfeiture 800 into 5, इक्विटी शेयर कैपिटल 800 into 10, दैट इज 8,000। ये आपका रीइश्यू का एंट्री बना। कंपेयरिंग 4,000 विद 5,600, क्योंकि 5,600 हम यूज कर सकते थे, 4,000 यूज कर दिया, तो 1,600 जो बच गया वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा टू आंसर बेस्ड कैपिटल रिजर्व।
होपफुली शेयर फोर फीचर वाला सेगमेंट और री इशू वाला सेगमेंट आपको क्लियर होगा। थैंक यू। फाइन देन लेट्स गो फॉर अ रैपिड रिकैप और अ रैपिड रिवीजन की इसमें करना क्या था। अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट रिकैप ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन नंबर 47। लेट्स टॉक अबाउट इट। अलग क्या था, सेटअप अलग है, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया गया, एक P&L बैलेंस शीट दिया गया है, तो सब कुछ रिवाइज्ड बनेगा। जस्ट लुक एट द एवरी नेम, इट इज रिवाइज्ड। ओके, तो सब कुछ रिवाइज बनेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री बनाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल में सिंपली पोस्ट इट। सेकंड, 10% depreciation on fixed assets is not is to be provided. Depreciation to fixed asset, depreciation P&L में जाएगा, fixed asset यहाँ से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड शॉप रेंट और प्रीपेड रेंट में एक छोटा सा लर्निंग देखना था। प्रीपेड रेंट टू रेंट विल बी द एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, प्रीपेड बाय नेचर पर्सनल, डेबिट बैलेंस पर असेट। रेंट कहाँ से माइनस करेंगे, रेंट बैठा है इन ऑफिस एक्सपेंसेस। किसने बताया, लॉजिक ने। रेंट किसका भरते हो, ऑफिस का, तो ऑफिस एक्सपेंस में वो बैठा है, माइनस किया जाएगा, अलग नहीं दिखा। ठीक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड, दैट्स आउटस्टैंडिंग इनकम, योर एंट्री इज आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, आउटस्टैंडिंग इनटू योर बैलेंस शीट असेट साइड, इनकम इनटू योर P&L क्रेडिट साइड। And maintain bad debt reserve 600. What's your entry for any provision? P&L to provision. उस provision का नाम bad debt reserve. So that's P&L to bad debt reserve. P&L के अंदर simply posted bad debt reserve, personal liability, balance sheet liability side. But will I have the asset on the other side, the debtor on the other side? Yes. So can I change the side? Yes. And if I change side, signs will change. So that's minus 600. फिर आता है adjustment number 5. टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 2000, 2000 से कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा मुझे बढ़ाएंगे, कैसे भाई गिविंग सेम फैक्ट। तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट उसे बढ़ाने के लिए किया और क्रेडिट। एंड डू आई हैव एनीथिंग टू डेबिट, नो, गो टू अ टेम्पररी अकाउंट नेम्ड एज सस्पेंस। उसका क्या करना है, देखो बैलेंस शीट में सस्पेंस दिया है बेटा ऑन द लायबिलिटी साइड, दैट्स वेयर उनका अकाउंटिंग गलत होगा, इनकम्प्लीट होगा, इसीलिए तो सस्पेंस आया है। बट अपने आने से सस्पेंस बाहर निकल जाता है। सो सस्पेंस वाज इन योर लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, मैंने हमारी एंट्री में किया डेबिट, आमने सामने कैंसिल, देयर इज नो नीड ऑफ सस्पेंस नाउ, देयर इज नो नीड ऑफ एरर नाउ। लेट्स गो अहेड। सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट हमने किया और क्रेडिट सेम साइड, प्लस परचेज ऑफ 800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, सो क्या करेंगे, सिंपली रिकॉर्डेड योर एंट्री इज परचेज टू क्रेडिटर, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटीज में भी दिखा सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो। ये पूछने मत आना कि 8800 डायरेक्ट दिखाएगा तो चलेगा, चलेगा। ठीक, मूविंग ऑन, वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स। लेफ्टओवर्स में सारे अकाउंट्स पोस्ट कर दीजिए अपनी अपनी जगह, उसमें कोई लर्निंग नहीं है। बट आओ फिर फाइनलाइजेशन में, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आया, P&L का नेट प्रॉफिट आया रिवाइज का, अप्रोप्रिएशन का आया 29,700, वहां से फिर पूरा खेल बदल जाता है। Look for the P&L ratio. Are you given P&L ratio clearly written 1:1, 3:2? कुछ भी दिया गया है नहीं, बट हिडन एडजस्टमेंट्स में हिडन तरीके से दिया हुआ है। कैसे पकड़ना है उसे, उनका नेट प्रॉफिट भले ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, भले ही गलत है, बट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट हवा में नहीं किया है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विच यू नीड टू कैच। And how to catch that P&L ratio बेटा, उनका प्रॉफिट 22,800 है एंड 15,200 है। सिंप्लीफाइड 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 सिंप्लीफाइड, यू विल कम डाउन टू 3:2। सो आपका 29,700 बढ़ जाएगा 3:2 में, एंड दैट्स वेयर लर्निंग्स आर अंडरस्टैंड। टोटलिंग करना है, गेट योर बैलेंस शीट टोटल्स, इट विल कम डाउन टू 94,000। क्लियर है बेटा? सो इफ यू आर स्टक एनीवेयर, लॉन्ग वीडियोस कमिंग अप, उसे देख लीजिएगा। ओके, आई सी यू, बाय बाय। Okay, so to cut things down for your company final accounts, as you can see, आपके पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस वहां पर दे दिया था आपको बोला गया था कि आपको एक 40,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज आपका हमने एक एंट्री बनाया था, दैट वाज
P&L to provision for tax. ठीक है, तो that was around 40,000. So if you can see P&L में 40,000 प्रोविजन टैक्स प्रोविजन वाले स्लॉट में चला जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, तो उसकी दूसरी इफेक्ट हमने यहाँ पर दे दी. ठीक है, इसके अलावा आपको ट्रायल बैलेंस में जो जो चीजें दी थी वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में चला जाएगा. दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, अदर इनकम 10,000, उनका टोटल कर दो तो आपकी टोटल इनकम आ गई. COGS, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, उनका टोटल गया 2,85,000. Then you get profit before tax, that is income minus expenses 1 lakh minus 40,000 of tax. 60,000 is your profit after tax, which will be shown under reserves and surplus. Talking about the balance sheet part, आपका शेयर कैपिटल 3,50,000 था, 60,000 उसमें हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस का ऐड किया, 4,10,000 हो गया. यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 1,75,000, नॉन करंट लायबिलिटीज 1,75,000. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में अगर आप देखो, करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखोगे, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का टोटल किया 90,000, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 5,75,000. अंडर असेट साइड नॉन करंट असेट्स आपके पास फिक्स में टेंजिबल 4 लाख और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 70,000 थे. अंडर करंट असेट्स आपके पास नॉन करंट असेट्स का टोटल 4,70,000. करंट असेट्स की बात करते हैं हम, तो वहां पर आपके पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स 55, 20 एंड 30 हमने रिकॉर्ड किया. टोटल आया 1,05,000. 4,70,000 प्लस 1,05,000, व्हाट यू गेट इज 5,75,000. योर बैलेंस शीट टोटल इज मैच्ड. सो होपफुली आपका ये सोल्यूशन एक अच्छे तरीके से आपको काम में लग चुका है. थैंक यू.